Hello and welcome back to my channel. We are doing class 11 NCERT Indian Constitution at Work chapter 4. We already covered chapter 1, 2 and 3. Link will be in the description. In this video, we will cover different type of executive system and powers of the president as well as vice president. First of all, what does executive means? Now consider there is an organization. To run that organization, you need certain people who will take policy decisions and some people who will implement those decisions. So, these people who implement those decisions, these are called executive. It is a body of persons that looks after the implementation of rules and regulations in actual practice. In the same way, to run a country, we need a government, and in the government, the people who look after the implementation of policies, day to day administration, implementation of laws, these are the people who are called executive. Now, there are two parts of executive: political executive and permanent executive. Political executives are those who take policy decisions, make laws, and permanent executives are those who are in charge of implementing those decisions. Political executives are Prime Minister, Council of Ministers, etc. And permanent executives are our civil servants, government officers, etc. So, executive is the branch of government responsible for the implementation of laws and policies adopted by the legislature. There are different types of executive system, broadly divided into two categories: collective leadership and individual leadership. The presidential system comes under the category of individual leadership. Since in the presidential system, a single person, that is president, is the head of the government as well as head of the state, whereas the parliamentary system and semi-presidential system come under the category of collective leadership, because in parliamentary system we have prime minister with council of ministers and president as head of the state. In semi-presidential system also we have president and prime minister. Let us understand these system in detail. The parliamentary executive exists in various countries such as Britain, India, Israel, Portugal, etc. Here the head of the government is called the prime minister, and he is usually the leader of the majority party. As you can see, Mr. Narendra Modi is the Prime Minister of India and he is the leader of the majority party BJP, who got majority seats in the last election in 2019. So the party who gets the majority forms the government and leader of that party becomes the Prime Minister. These executives are responsible to the legislature. It means they are accountable to the legislature for their actions. Whatever decision they take, they have to answer the legislature. In the parliamentary executive, there is a head of the state, which may be either monarch or a president. If it is a monarch, then it is a constitutional monarchy. Like in Britain, Canada, Queen is the ceremonial head, the monarch, and Prime Minister is the head of the government. If President is head of the state, then it is a parliamentary democracy or republic, because President is an elected head. Monarch is a hereditary ruler. In semi-presidential system, head of the government is the Prime Minister and head of the state is the President. However, both President and Prime Minister have their own sets of power. President has considerable set of power. In parliamentary system, President is just ceremonial, which means President does not have any actual powers. He works on the advice of the Prime Minister. However, in the semi-presidential system, President has powers. He appoints the Prime Minister and has wide-ranging powers, actual powers, based on the constitution of that country. However, in semi-presidential system also, PM and his council are responsible to the legislature. In presidential system, president is
not responsible or accountable to the legislature. In presidential system, both head of the state and head of the government is single person, that is the president, not responsible to the legislature, and he is usually directly elected. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती है. हमने देखा यूएसए में ट्रम्प ने डिसाइड किया कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाएंगे, पेरिस समिट से बाहर हो जाएंगे. ऐसे डिसीजंस प्रेसिडेंट अपने आप ही बिना कांग्रेस के ऑथराइजेशन के ले सकते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर देयर. उनके पास पावर है कि ही कैन डिसाइड एनीथिंग. वो अपना एग्जीक्यूटिव खुद अपॉइंट करते हैं, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नॉट नेसेसरीली बिलोंग करते हैं, और उनको उसी तरह से वो रिमूव भी कर सकते हैं. एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन इंडिया. इंडिया में है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो पार्लियामेंट का पार्ट होता है. हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट बट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ द बिल मेकिंग. सो चेन ऑफ कमांड कैसा है? तो सबसे पहले हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट में हमारा है लोकसभा एंड राज्यसभा. एग्जीक्यूटिव यानी कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होते हैं, यानी कि जो एमपीज होते हैं वो ही गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं. यानी कि एमपीज जो है वो पार्लियामेंट के भी पार्ट होते हैं और वो गवर्नमेंट के भी पार्ट होते हैं. इसीलिए इनको कहते हैं पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जो गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं वो एक्चुअली में एमपीज हैं, जो कि या तो राज्यसभा के मेंबर हैं या फिर लोकसभा के मेंबर्स हैं. तो ये एमपीज जो लॉ बनाते हैं वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट के एसेंट से फिर वो कानून बनता है. तो इस तरह से पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का प्रोसेस काम करता है. गवर्नमेंट पार्ट होती है पार्लियामेंट की. आर्टिकल 74 क्लॉज 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसका हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, वो एड और एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को इसी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करना होगा. अब इस बात पे काफ़ी डिस्कशन रहा है, काफ़ी डिबेट रही है वेदर प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाउंड है, यानी कि बाध्य है, या फिर वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं. इसको फाइनली डिसाइड किया गया 42nd अमेंडमेंट से कि प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस एडवाइस. प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस माननी पड़ेगी. लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट में ये दिया गया कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होगी कि वो इस एडवाइस को एक बार वापस भेज सकते हैं दोबारा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि वो अपने एडवाइस को रिकंसिडर करें. लेकिन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से उसी एडवाइस को प्रेसिडेंट के पास वापस भेज देते हैं तो प्रेसिडेंट को उस एडवाइस को मानना पड़ेगा. वो एडवाइस किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हो सकती है और प्रेसिडेंट को उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा. फिर है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के फिर वाइड रेंजिंग पावर्स हैं, जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव पावर. जुडिशियल पावर्स में क्या है कि वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्डन होते हैं, रिप्रीव होता है, रेमिशन होता है, कम्यूटेशन होता है, या फिर किसी की डेथ पेनल्टी को माफ़ कर देना. ये काम सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर ही कर सकते हैं कि किसको पार्डन करना है और नहीं करना है. लेजिस्लेटिव पावर्स में जैसे कि हमने देखा कि वो किसी भी बिल को साइन करेंगे तभी वो बिल कानून बनेगा, तो ये उनका लेजिस्लेटिव पावर है. ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जब भी हाउस सेशन में नहीं होता है और गवर्नमेंट को कोई बिल लेके आना होता है, कोई कानून लाना होता है. जैसे कि हमने देखा कि अभी ये जो फार्म लॉज हैं ये बिल पास होने से पहले एज एन ऑर्डिनेंस लाए गए थे, क्योंकि उस समय हाउस सेशन में नहीं था. तो ये ऑर्डिनेंस कौन इशू करता है? प्रेसिडेंट इशू करते हैं. ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर है. एग्जीक्यूटिव पावर में है कि वो हेड ऑफ द आर्मी होते हैं प्रेसिडेंट. इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास होती है. प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जो होती है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी,
स्टेट में जो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, बट ये सारा कुछ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये सारे फॉर्मल पावर्स हैं, प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल पावर्स नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग डिस्क्रेशनरी पावर्स। ये डिस्क्रेशनरी पावर्स क्या है? पहला तो कि उनको राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, कंट्री में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या पॉलिसी डिसीजन चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों की सूचना देने के लिए प्राइम मिनिस्टर बाध्य होते हैं। उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करना होता है, प्रेसिडेंट लिख करके भी ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। दूसरा, अभी हमने देखा कि वो कोई भी एडवाइस को वापस गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं कि गवर्नमेंट उसको कंसिडर करे। तो ये पावर डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का। तीसरा, वीटो पावर। वीटो पावर क्या होता है कि कोई भी बिल को हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रेसिडेंट साइन करेंगे तभी वो फाइनली लॉ बनेगा। तो प्रेसिडेंट के पास ये वीटो पावर है कि वो उसको साइन नहीं करे। पहला तो उसको वापस भेज सकते हैं कंसिडर करने के लिए कि इसको कंसिडर किया जाए दोबारा, या फिर उसको कोई डिसीजन लिए बिना ही अपने पास टेबल पे छोड़ दे सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं मेंशन किया गया है कि प्रेसिडेंट कितने समय में ये साइन करके वापस भेजेंगे। तो ये वीटो पावर्स प्रेसिडेंट यूज़ कर सकते हैं जब उनको लगे कि कोई बिल सही नहीं है, उसमें कुछ लीगल फ्लॉज हैं या फिर वो कंट्री के लिए सही नहीं है। प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी ने ऐसा किया था जब पोस्टल अमेंडमेंट बिल आया था और उनको लगा था ये कि फ्रीडम ऑफ प्रेस पे यह हमला है, तो उन्होंने उस पर साइन नहीं किया था, उसको होल्ड कर लिया था और फाइनली वो बिल नहीं पास हो सका क्योंकि सेशन खत्म हो गया। ये वीटो पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है, प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। फाइनली किस को प्राइम मिनिस्टर चूज किया जाएगा जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं हो। किसी एक पार्टी के पास 50% सीट्स नहीं होते कि वो आकर के गवर्नमेंट बनाए। ऐसे में प्रेसिडेंट को डिसाइड करना होता है कि वो किसको बुलाए सरकार बनाने के लिए। तो ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है ये देख लेते हैं। प्रेसिडेंट को 5 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है और इनको इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज कुछ नहीं है, ये दरअसल जो एमपीज होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितने एमएलएज होते हैं वो सारे मिल करके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, यानी कि ये सारे मिल करके वोटिंग करते हैं। तो इनको ही कहते हैं हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज। वोटिंग का मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। मैंने पिछले वीडियो में जब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डिस्कस किया था एनसीईआरटी का क्लास 11 का, तो वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डिस्कस किया था। यहाँ पे कैसे वोटिंग होती है कि जितने भी एमपीज हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके वोट की वैल्यू बराबर होती है जितने भी एमएलएज हैं सारे स्टेट के मिलाकर उनके वोट की वैल्यूज़, टोटल एमएलएज वोट। अब जैसे टोटल एमपीज हमारे 776 हैं और टोटल एमएलएज हमारे 4142, यानी कि ऑलमोस्ट 4000 एमएलएज हैं, तो इनके वोट की वैल्यू और इनके वोट की वैल्यू बराबर है। टोटल वोट की वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ ये मतलब है कि अलग अलग स्टेट के एमएलएज की वोट की वैल्यू अलग अलग है। और इसको कैसे डिसाइड किया गया है? अगेन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ के एमएलएज की वोट की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब कि यूपी के एमएलए की वोट की वैल्यू असम के एमएलए की वोट की वैल्यू से ज़्यादा होगी, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा पॉपुलेशन को एक एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं और असम में कम पॉपुलेशन को एक एमएलए रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ वाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रखा गया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, लिस्ट सिस्टम प्रिपेयर होता है और लोग प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोट करते हैं। रिमूवल थ्रू इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट को रिमूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट, जिसके लिए पहले तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ जिस भी हाउस में ये रिजोल्यूशन पास होना है वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है ये रिजोल्यूशन लाने के लिए कि इंक्वायरी की ज़रूरत है या इम्पीचमेंट होनी चाहिए प्रेसिडेंट की बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये रिजोल्यूशन दूसरे हाउस में जाता है, सेकेंड हाउस में, यानी कि अगर लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ है तो ये फिर राज्यसभा में जाता है, या फिर राज्यसभा में ओरिजिनेट होगा रिजोल्यूशन प्रेसिडेंट को रिमूव करने का तो फिर वो लोकसभा में जाएगा। वहाँ पे फिर इंक्वायरी होगी, डिबेट होगे और फिर अगर पाया जाएगा कि हाँ
प्रेसिडेंट जो है उन्होंने वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फिर एक रिजोल्यूशन पास किया जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, और तब माना जाएगा कि प्रेसिडेंट हो गए हैं इम्पीच, यानी कि अब उनको हटाया जाएगा। तो जो प्रोसेस जो है इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इम्पीचमेंट प्रोसेस पे, लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिनको डिटेल से समझना है वो वीडियो देख सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसा कि हमने देखा प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, एमपीज और एमएलए इलेक्ट करते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज इन्वॉल्व होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 12 मेंबर्स जो राज्यसभा में है वो नॉमिनेट होते हैं और लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। हाउएवर प्रेसिडेंट के रिमूवल में केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट के एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 2 डिफरेंस है। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि इनके इलेक्शन के बाद ये ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। जब भी प्रेसिडेंट सिक होते हैं, अटेंड नहीं कर सकते, उस समय वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने जान लिया प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब प्रेसिडेंट के पास सेरेमोनियल पावर है, देन व्हाई डू वी नीड प्रेसिडेंट, और व्हाई पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्यों रखा गया इंडिया में। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिबेट कर रहे थे, उस समय उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव में पर्सनालिटी कल्ट के डेवलप होने का डर होता है, क्योंकि ऑल द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन। प्रेसिडेंट में कंसंट्रेटेड होती है, तो डेंजर है पर्सनालिटी कल्ट के डेवलप होने का। इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद किसी एक पर्सन के हाथ में इतनी पावर दे देने का मतलब था कि कंट्री को फिर से डेंजर में डालना। सो दे वॉन्टेड टू अवॉइड दिस डेंजर ऑफ पर्सनालिटी कल्ट। फिर थी बात पास्ट एक्सपीरियंस की। ऑलरेडी हमारे कंट्री में एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का। 1919 के इलेक्शन, फिर 1935 के इलेक्शन के बाद जिस तरह का रूल रहा है वो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का रूल था। 2 हाउसेस थे और गवर्नमेंट उसी से बेस्ड थी, तो ये एक्सपीरियंस बेनिफिशियल हो सकता था आगे कंट्री को रन करने के लिए, क्योंकि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री के पास पास्ट एक्सपीरियंस गवर्नमेंट को रन करने का बहुत ही कम होता है, तो इस एक्सपीरियंस के बेस पे कंट्री को रन किया जा सकता था। फिर तीसरी बात थी चेक्स एंड बैलेंस को। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में ये देखा गया है कि एग्जीक्यूटिव को बहुत ही आसानी से चेक में रखा जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा। जैसे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं गवर्नमेंट, वो जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उनकी जवाबदेही होती है लेजिस्लेचर में, वहाँ पे उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से चेक्स और बैलेंस बना रहता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का फॉर्म चूज किया गया था इंडिया के लिए। प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उसको कभी भी लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस वोट के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि उनकी टर्म पूरा होने से पहले भी उनको हटाया जा सकता है। इस सिचुएशन में कंट्री में किसी एक हेड का होना ज़रूरी है जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे, या फिर जो ये डिसाइड करे कि कंट्री उस टाइम में कैसे चलेगी, आगे कौन रन करेगा, किसको फिर अपॉइंट किया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए एक हेड की ज़रूरत है, इसीलिए प्रेसिडेंट को चूज़ किया गया। ये प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, तो हमारी इसलिए कंट्री को रिपब्लिक बोला जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।